For having joined us with those details from Srinagar. Let's go across live now to a press conference on the cabinet decisions that were taken this morning. Cabinet and the Cabinet Committee on Economic Affairs met today. They have taken two significant decisions. And to brief you on the outcome of these decisions, we have with us Honorable Minister for Information and Broadcasting and Environment and Forest, Climate Change, Sri Prakash Javadekar ji, and Honorable Minister for Petroleum and Natural Gas and Steel, Sri Dharmendra Pradhan ji. We have also with us Petroleum and Natural Gas Secretary, Dr. M.M. Kutti ji. I extend a warm welcome to the dignitaries. First of all, Honorable Minister for Information and Broadcasting will brief you about the decision on IDBI. Following that, Mr. Pradhan will brief you about the ethanol-related issues, and then we'll take a few questions. Over to our Honorable Minister, sir. IDBI बैंक सरकारी बैंक थी और आपको पता है कि पिछले साल LIC ने 51% शेयर्स उसके लिए और गवर्नमेंट आज भी 49% शेयर्स उसमें रखती है। इसकी कैपिटल एडेक्वेसी बढ़ाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए देने की आज योजना बनाई है। 9,000 से भी ज्यादा, तो LIC 4,700 करोड़ देगी, लगभग वो 4,743 करोड़ एंड 4,557 करोड़ सरकार देगी। ये 1 साल से 2 साल से जो ये मर्जर हुआ है, तो LIC और IDBI इकट्ठा आने से दोनों का फायदा हुआ है। जो क्रेडिट रेशियो होता है वो 6.22 से लेकर 6.22 से लेकर 11.58 इतना बढ़ गया। नेट NPA रेशियो रिड्यूस्ड फ्रॉम 17.3% to 10.11%। फिर जो प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है वो भी 69% से 83% बढ़ गया। और सिनर्जी विथ LIC ने क्या हुआ फायदा कि 11 लाख LIC के एजेंट, 3,184 ऑफिस और 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स, इनका एक एक्सेस IDBI बैंक को मिला और दोनों की सुविधा हुई। अभी LIC सिनर्जी के कारण पहले वर्ष में 500 करोड़, अगले साल रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा ये कल्पना है, और फिर 1,000 करोड़ बढ़ेगा। IDBI में इंश्योरेंस बिक्री का भी काम शुरू हुआ, तो इस साल 250 करोड़ प्रीमियम इकट्ठा किया। अगले साल 2,000 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करेंगे, जिससे 200 करोड़ उनको मिलेगा। और हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ये सब IDBI के फिर से काम ढंग से शुरू हो रहे हैं और इसमें भी 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और इसलिए तरह से देश के बैंकिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सरकार जो तेजी से कदम उठा रही है, इसी का एक हिस्सा है। टुडे गवर्नमेंट हैज टेकन ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन to recapitalize on one-time basis to IDBI with infusion of 4,557 crores by the government and 4,743 crores from LIC, because LIC has 51% share and government has 49% share, and so in that proportion both will contribute to the capital adequacy so that bank can work efficiently.
government is closely watching the developments in banking sector, and as you know, in budget we have provided 70,000 crore rupees for recapitalization. There has always been merger also, 10 banks into 4 banks, and the capital recapitalization decision has also been ongoing process. This IDBI's recapitalization will help because the synergy it generated with merger with LIC or takeover by LIC has really helped IDBI and LIC both. It's a win-win formula. And therefore, the network of 11 lakh agents, network of 29 crore policyholders, and 2 lakh employees of LIC is now available to IDBI. And IDBI's infrastructure and the facilities and banking is also beneficial. So it's a mutually beneficial, and therefore CRAR has improved, net NPA ratio reduced, provisional coverage ratio has improved, and revenue is increasing, and insurance is also now getting sold by IDBI Bank. So that also benefits both. So this recapitalization for one time will definitely put IDBI in a front foot to take the normal banking activities to the next level. So that very important decision which shows government's commitment to recapitalize banks and take it to a very sound economic position in banking. The second decision about which Dharmendra Pradhan will talk about, ये गन्ने किसानों के लिए मुख्यतः एक हुआ है फायदे का निर्णय, और आपने याद होगा आपको पिछले 3 कैबिनेट में 3 बड़े फैसले हुए। एक फैसला हुआ कि बफर स्टॉक 40 लाख टन का हम तैयार करेंगे शुगर का, जिसके लिए 1674 करोड़ रुपए 1674 करोड़ रुपीस रखे हैं। एक एक्सपोर्ट सब्सिडी 60 लाख टन का निर्यात हो शुगर की, क्योंकि यहां दाम इतने न गिरे कि किसान को नुकसान हो, और इसलिए 60 लाख टन का एक्सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए 6268 करोड़ ये रखे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे बफर स्टॉक की रकम हो या एक्सपोर्ट सब्सिडी की रकम हो, किसान के बैंक अकाउंट में सीधी जाएगी। आज का निर्णय भी गन्ना किसानों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है और दूरगामी है, उसकी जानकारी अभी धर्मेंद्र जी आपको देंगे। मित्रों, सरकार की एक जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज संभाले, तब से किसानों की आय दुगनी हो और विश्व में हमारी जो पर्यावरण के प्रति कमिटमेंट है, यद्यपि भारत एक प्रदूषणकारी देश नहीं है, उसके बावजूद हम लोगों ने COP21 में हमारी कमिटमेंट करके आए थे कि हमने कार्बन एमिशन, तब माननीय प्रकाश जी मंत्री थे, उन्होंने कार्बन एमिशन डीकार्बोनाइज की ओर एक बड़ा कमिटमेंट करके आए थे। सरकार की सारे नीति उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और आज की जो एथेनॉल के बारे में जो रिवीजन प्राइस हुई है, उसकी जो 2-3 प्रमुख पहलू है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अन्नदाता ऊर्जादाता बने, ये सरकार ने इस बार बजट में भी और बाद में कई बार प्रधानमंत्री जी ने उसको पहले भी कह के आ रहे थे, बाद में भी कहा है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक घोषणा नहीं था, एक स्लोगन नहीं था, इसको करने वाला एक प्रमुख रणनीति था, काम था। उसी के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, अगर मैं आपके साथ एक तथ्य शेयर करूं, जब 13-14 में हम लोग जिम्मेवारी लिए
तब एथेनॉल तब भी नियम 5% होने के था। अटल जी की सरकार के समय में 10% ब्लेंडिंग हो ऐसे योजना बनी, बाद में उसको रिड्यूस भी कर दिया गया। हमने उसको फिर प्राथमिकता दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से एक निर्धारित मूल्य व्यवस्था के माध्यम से खरीदने का प्रक्रिया शुरू किया। जो 38 करोड़ लीटर पेट्रोल में ब्लेंडिंग की उपलब्ध होती थी किसानों से, शुगर इंडस्ट्री से, वो आज बढ़ के 18-19 शुगर के ईयर में 200 करोड़ लीटर हो चुका है और अगले साल ये बढ़ के 260 करोड़ लीटर होने वाला है। 1.53 ब्लेंडिंग हो पाता था, लक्ष्य तब भी 5 था, लेकिन 1.53% ब्लेंडिंग हो पाता था। ये इस बार बढ़ के 6.20 ब्लेंडिंग हो गया है। इतनी बड़ी क्वांटम जंप किसानों के लिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ली है। हर एक साल जैसे अगर देनदारी मूल्य के बारे में सबसे उसकी चैलेंज होता था, उसकी प्राइस क्या रहनी चाहिए, जैसे हमने कहा कि निर्धारित मूल्य व्यवस्था हमने व्यवस्था किया। 13-14 में 1355 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी गई थी, जो इसी साल बढ़ के 5456 करोड़ हो गया है और अगले साल इसकी लक्ष्य है 7000 से ज्यादा करोड़ रुपया हो जाएगी। इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, किसानों की आमदनी बढ़े और इसी बार जो प्रमुख एक निर्णय किया गया, एक दो प्रमुख फीचर आज के निर्णय में हुई है। पहले सी हैवी, पिछले दिनों में बी हैवी मोलासेस, बाद में पिछले साल हमने एक निर्णय किया जो शुगर मिल, जो शुगर कारखाना चीनी के बदले शुगर केन जूस से ही एथेनॉल बनाएगा, उसको भी हम खरीद लेंगे। उससे इस बार उससे 2 कदम और आगे हम लोग गए। देश में चीनी उद्योग को, शुगर इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबल हैंड होल्डिंग करने के लिए, निरंतर हैंड होल्डिंग करने के लिए सरकार ने 2 प्रमुख कदम इस बार उठाए। व्हाट आर दे? शुगर जूस से, सिरप से भी, पहले सी हैवी, बी हैवी, पिछले बार शुगर केन जूस तक था। इस बार हमने कहा शुगर सिरप से भी कोई, शुगर ना बनाते हुए शुगर सिरप कोई बनाता है, उसमें से भी एथेनॉल बनाता है, तब भी हम उसके एथेनॉल खरीदेंगे। हम उतने में अटके नहीं। चीनी मिले बाजार की अवस्था देख के शुगर ही बना देते हैं। हमने इस बार महत्वपूर्ण फैसला यह किया है, शुगर बन भी जाए, शुगर को अगर फिर वो प्रक्रिया में डाल के एथेनॉल बना के हमको देंगे, तब भी उसको हम खरीद लेंगे और खरीदने में प्राइस भी अच्छा देंगे। पिछले दिनों में जो प्राइस होती थी, सारे सेक्टर में हमने प्राइस को बढ़ाया है इस बार। पिछले दिनों में सी हैवी की प्राइस 43 रुपया 46 पैसा, 43 रुपीज 46 पैसा होता था पिछले शुगर के ईयर में। इस बार उसमें 29 पैसा बढ़ा के हमने 43.75 पैसा किया है, 29 पैसा एनहांस किया। बी हैवी में पहले 52 रुपया 43 पैसा होता था, 52 रुपीज 43 पैसा। इस बार उसको बढ़ा के 54 रुपीज 27 पैसा किया, 1 रुपया 84 पैसा हमने बढ़ाया मूल्य में। शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों को हमने हाई एंड प्रोडक्ट माना है। उसको खर्चा ज्यादा लगती है। उसकी रेट पिछले बार शुगर केन जूस की 59 रुपीज 19 पैसा था, इसको हमने इस बार बढ़ा के 59 रुपीज 48 पैसा किया, उसमें भी 29 पैसा बढ़ाया है। मूल्य ज्यादा दिए, ज्यादा प्रोडक्ट से उसको एथेनॉल कन्वर्जन की अनुमति दिए, उतना नहीं। हर एक साल हम लोग इसकी एक नीति बनाते थे। इस बार कैबिनेट ने निर्णय किया, उसको एक शुगर इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी को एथेनॉल की ओर डाइवर्ट करे, इसीलिए उसको इंडस्ट्री स्टेक होल्डर ने यह कहा हमें एक लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी दिए। आज कैबिनेट ने निर्णय किया उनको एक लॉन्ग टर्म एश्योरेंस दिया जाएगा।
हर एक साल उसकी प्राइस रिवीजन होगा। पिछले दिनों में जो प्राइस हुई है हर एक साल बढ़ी है, इसलिए एक अपवर्ड प्राइस रिवीजन के साथ इसको एक लॉन्ग टर्म 5 साल की गारंटी दी जाती है कि आप शुगर के बदले अगर आप एथेनॉल बनाओगे तब आपको एक एश्योर्ड रेट जो कॉम्पिटिटिव है, एश्योर्ड टाइमलाइन, सर्टेनिटी ये दिया जा रहा है। इसके कारण हमारी देश में एथेनॉल की उत्पादन बढ़े। इस बार और एक फीचर नया जुड़ा गया है जिसमें पहले जैसे जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की जिम्मेवारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले लेती थी, इसमें भी ले लेगी। सरप्लस फ्रूट ग्रेन और रॉटन फ्रूट ग्रेन, ये दोनों में से भी एथेनॉल जो बनाएंगे, यानी सड़े हुए गेहूं, चावल, टूटे हुए चावल, मकाई, ये सारे जो सरप्लस आज किस पॉकेट में हो रहा है, उसके ऊपर भी एथेनॉल बनाने से उसको भी प्रोक्योर किया जाएगा, उसको भी कंपनियों ने प्राथमिकता देके खरीदेंगे। तो उसके कारण जो हमने इस बार टारगेट रखा, और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अंत में, अगले साल की 1920 की हमारी टारगेट 260 करोड़ लीटर होगा। ये सारे सेक्टर में से सी हैवी, बी हैवी, शुगर केन जूस, शुगर सिरप, शुगर एंड अदर सोर्स, ये सभी में से 260 करोड़ लीटर हम ब्लेंडिंग करने के लिए हमको उपलब्ध होगा। ये हमारी आवश्यकता की 7% ही होगा, हमारा लक्ष्य 10% है। हम 7% अगले साल उसको पूरा करने वाले हैं। और हमने जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक जिम्मेवारी दिया था, इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे, 10% इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटे। हम इसी मुहिम के कारण अगले साल लगभग 1 बिलियन डॉलर की हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाएंगे। लगभग 2 मिलियन मेट्रिक टन की क्रूड ऑयल की रिप्लेसमेंट ये करेगा। ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी की, हमारी लगभग 200 मिलियन मेट्रिक टन आज इंपोर्ट होती है, उसमें से अगर हम 2% रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे 1% इंपोर्ट सप्लीमेंट सिर्फ एथेनॉल पे होने वाला है। सरकार ने कंसिस्टेंटली देश की किसानों की आमदनी बढ़े, देश की पर्यावरण के ऊपर उसकी प्रभाव आए, विशेष करके शुगर इंडस्ट्री को एक लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन मिले, इसीलिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम आज लिया है। Okay, we'll take a few questions now. Yes. एक सेकंड। जैसे सबको रिकैपिटलाइज कर रहे हो वैसे वो तो पैसा ही होता है। नहीं, ऐसा है, दैट्स अ मैकेनिज्म। द इशू इज व्हेन यू गिव दैट रिकैपिटलाइज, their capacity to lend, their capacity to operate improves. But the issue is this bond is not fiscally calculated. It is beyond the fiscal balance sheet. No, this is out of 70,000 crore which we provided in the budget. अभी 6.2% के आसपास हो गया प्लेनिंग, 10% आपको लगता है कब तक हो जाएगी? अगले साल 7% हो जाएगा। जिस तेजी से इस बार हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा है, और हमारी तो एक एम्बिशियस लक्ष्य है, हम लोग 10% 2021-22 तक कर लेंगे। जब आजादी का 75 साल हो रहा होगा उस समय हमने लक्ष्य रखा है, तब हम लोग 10% कर लेंगे। Sir, this is Ashna from ET now. Sir, I just want to clarify one thing. Firstly, last year a special category was created, which you also mentioned about deriving ethanol from 100% cane juice. So, is the price for that similar as the last year? Also, what will be the price for procurement of ethanol manufactured from food grains? 29 पैसा उसी में से भी बढ़ोतरी हुई है। मैंने आपको कहा कि लास्ट टाइम उसकी पुराने प्राइस था 59.19 रुपीस। Okay. ये बढ़ के अभी 59.48 हुआ है। और बाकी अदर सोर्सेस के लिए स्टेक होल्डर्स की कंपनियों से चर्चा चले, दे विल ऑल्सो गेट रेम्यूनरेटरी प्राइस। All right. Thank you.
थोड़ा समझता कम इसलिए पूछना चाह रहा था। ये एथेनॉल तो एक ही चीज होती है, केमिकल फॉर्मूला उसका होता होगा, मगर अलग अलग चीजों से आप बनाते हैं तो फिर क्या तेल कंपनी ये पहचान पाती है कैसे बनाया गया है और इसलिए अलग अलग प्राइस देते हैं? नहीं, उसकी प्रोसेस, क्योंकि मोलासेस इज इन ए वे बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। वो मेन प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट शुगर केन जूस, उसके बाद फिर शुगर उसमें से आते हैं, उसमें से जो रेसिड्यू रह जाती है वो है मोलासेस। इसीलिए उसकी तो एक सेकेंडरी रेट, इसीलिए उसकी हल्का रेट इसीलिए होती है। शुगर की बदले में सीधा सीधा शुगर हमारे देश की जो मूल विषय है, शुगर इंडस्ट्री की कैपेसिटी और शुगर की खपत, ये दोनों में अंतर आ चुका है। हमारी शुगर इंडस्ट्री रोबस्ट हो चुका है। पहले हम इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दिया जाता है, पिछले कैबिनेट में वही निर्णय किया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्थिति है उसकी भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। इसलिए हमने एक इनोवेटिव मेथड लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आप शुगर की बदले आप सीधा एथेनॉल बना दो, इसलिए उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। उसकी इंस्पेक्शन मैकेनिज्म हमारे पास है, ओएमसी एंड फूड डिपार्टमेंट और रिस्पेक्टिव मिल के साथ हमारी उसकी अरेंजमेंट है। Is 260 crore liters for next year, right? Right. So what does it mean in terms of the additional cost because of the decisions that were taken today? इसकी ये कुल मिला के 7% हो जाएगा रिप्लेसमेंट में, ब्लेंडिंग में। इसकी फाइनेंशियल वैल्यूएशन 7,116 करोड़ हो जाएगा। इस रेट में, जो रेट हमने ऑफर किया है उस रेट में 260 करोड़ लीटर की ये हो जाएगा। और इसकी क्रूड ऑयल सब्स्टिट्यूट के नाते ये लगभग 2 मिलियन क्रूड ऑयल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सर 1 बिलियन की डॉलर में करे तो 1 बिलियन होगा, लेकिन क्वांटम में करे तो 2 मिलियन मेट्रिक टन। सर एक सवाल है, आपने जो इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम देयर इज ए ह्यूज फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। जब सारे गाड़ियां बैटरी में चलने लगेंगी, इथेनॉल का होगा क्या आखिर में? एंड व्हाट इज द टारगेट लाइन, बाय व्हाट टाइम यू विल बी आल्सो लाइक गेटिंग आउट ऑफ इथेनॉल? मेरे मित्र दीपक दास इतना ये प्रश्न पूछा क्यों ने, मैं इसलिए तंग। देखिए दीपक जी, आपका कोशिश काम नहीं करेगा। आपका मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, इस बार आप जान के नहीं समझ रहे हो। भारत में दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन में भारत कहां खड़ा हुआ, थोड़ा आप समझिए। आज हम एब्सोल्यूट एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया की तीसरे नंबर की देश है। आफ्टर चाइना एंड अमेरिका वी आर द नंबर 3। दूसरे ओर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन पे हम विश्व की तुलना में 1/3 है। विश्व अगर 100% खर्चा करती है तो हम लगभग 33-34% खर्चा करते हैं। इसके अर्थ है हमारी एनर्जी एपिटाइट बढ़ रहा है। दुनिया की कोई भी एनर्जी प्लेयर नहीं है जो हमारे वहां नहीं देख रहा है। इसके अर्थ है भारत में गाड़ियां सारे एनर्जी से चलेगा, पेट्रोल से चलेगी, डीजल से चलेगी, सीएनजी से चलेगी। अभी अभी हम रशिया के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, पुतिन और मोदी जी, ये दोनों के सामने एक महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। एलएनजी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर चलने वाला है। वैसे ही भारत में जो सामान्य वर्गों की लोगों के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी अफोर्डेबल होगा। हमारे देश में 175 गीगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी हम रिन्यूएबल बना रहे हैं। क्या करेंगे उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में लगाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलेगा, वैसे ही बायोफ्यूल से भी हम चलाएंगे। सीबीजी के कंप्रेस बायोगैस के हम बहुत बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। यूज कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट करके हमने रिप्रोसेस कुकिंग ऑयल करके रूको की मूवमेंट चला रहे हैं। बायोडीजल बनेगा, एथेनॉल बनेगा। भारत के आने वाले दिनों में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी मल्टी सोर्स, इट विल बी मल्टी डायमेंशनल। इसीलिए अब चिंता मत करिए, सारे एनर्जी खप जाएगा और आप जो भी चॉइस आपको सस्ता होगा, हम तो ऐसे दिन लेके आएंगे ग्राहकों को अपने फ्लेक्सी इंजन में। बाजार में जो सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल गाड़ी चलाओ। उसी इंजन में आपको उसमें एथेनॉल स्विच ऑन कर देना है, एथेनॉल गाड़ी सस्ता है, एथेनॉल चलाओ। ऐसे ही दिन कम दिनों में आएगा।
आप दीपक दास ऐसे गाड़ी में चलोगे। Okay, yeah. Sir, this side, sir. Sir, this side. So the requirement for 18-19 was 330 crore liters. In 1920s, it is reduced. You're saying it is 260 crore liter. Could you tell us why? Sir, the requirement in 18-19 was 330 crore liters of ethanol by Availability. Ethanol availability. 1920, the target is 260. So why is it reducing? अरे आपको परिचय ध्यान में, तो आप तो एग्रीकल्चर की दिखने वाले व्यक्ति हो। शुगर के नीला महाराष्ट्र इस अभी अभी थोड़ा फ्लड बाद में हुआ। महाराष्ट्र की शुगर के इलाका में काफी ड्रॉट आया था। इस बार हमने तो उनकी जो कमिटमेंट था, कंपनियों ने जो एलडीए वगैरह लगाने वाले थे, उसको हमने रिविजिट करना पड़ा हमको कंपनियों की ओर से। उन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने हमको स्पेशल रिलीफ मांगे, वहां अकाल आई है उस इलाका में, हम कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। ये तो सीजनल है, एक टारगेट है फाइनल। हमें देखना चाहिए 17-18 में 150 करोड़ लीटर था, उससे बढ़ के हमने 200 करोड़ लीटर किया। ग्रोथ तो हुई है। Yes. Sir, you said that now you can extract ethanol direct from sugar. This is, I can't understand as to how. Because you have to extract ethanol from molasses. Once you extract sugar from molasses, it is the leftover molasses from which you take out ethanol. This is molasses has 12 byproducts. One is also an ethanol. So once you take out the property or the potentiality of molasses reduces. Do you mean to say now you will not extract sugar and from a thicker quantity of molasses you will extract ethanol? ऐसा नहीं है। शुगर केन को बनाते हुए, शुगर केन से जूस बनाते हुए और उसको शुगर प्रोसेस में डालते हुए उसकी बाई प्रोडक्ट है मोलासेस। उसमें से जो रेसिड्यू है उसका एडिशनल प्रोडक्ट है। उसमें से जो कुछ जो वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो ग्लूकोज कंटेंट, जो कार्बन कंटेंट, उसी को मोलासेस में रह जाए तो उसी को हम एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। आगे चल के आवश्यकता पड़ी शुगर केन जूस से सीधा मोलासेस भी ना आ जाए, शुगर केन जूस को ही हम पूरा सब मैकेनिकल प्रोसेस। इतना तो तक मैं होता तो कारखाना का मालिक होता। तो इतना हम पॉलिसी इंचार्ज है। हम उसमें से बिल्कुल आपको हम शुगर वालों से, पावर साहब से, गडकरी साहब से मिलवाएंगे, वो आपको डिटेल बताएंगे। अभी उसमें से हमने शुगर के जूस को अनुमति दिया। अभी आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि शुगर को कैसे करोगे। शुगर को भी केमिकल प्रोसेस में रिवर्स करके फिर उसके कार्बन को जलाने के लिए एथेनॉल बनाया जा सकता है, उसको भी हमने अनुमति दिया। हमने शुगर इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी दिया। शुगर इंडस्ट्री की जो एक दिक्कत रहती थी कि प्राइस मिला नहीं मिला, बाजार में खपत हुई नहीं हुई, एक्सपोर्ट में हमको दिक्कत हुई, सारे को समाधान देने के लिए हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका एक उत्तर समझ लीजिए, आज मुद्दा क्या है, संकट क्या है? शुगर का एक्स्ट्रा स्टॉक इज द इश्यू। और इसलिए हमारे तीनों निर्णय, बफर स्टॉक का निर्माण, एक्सपोर्ट सब्सिडी का निर्णय और ये निर्णय उसी रूप में देखना चाहिए कि वी आर डीलिंग विथ ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड वी हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। सुबह उरान की हमारी प्रोसेसिंग प्लांट में ड्रेनेज इलाका में गैस लीकेज के कारण आग लगी है। सुबह 7:15 में वो आग की खबर आई, लगभग 9:30 तक आग कंटेंट हो गई थी। मेरे पास कैबिनेट जाने की पहले तक जो ओएनजीसी सीएमडी से जानकारी था, उस घटना में 4 महत्वपूर्ण जिंदगी गई है। वो दुखद घटना है। वहां हमारी अधिकारी पहुंच के उसकी बाहर की जायजा ले रहे हैं। अभी क्राइसिस नहीं है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। Yes, Javadekar ji, today you have taken decision to recapitalize IDBI, but in this context, what is the government's response on the criticism by Dr. Manmohan Singh
that the slowdown in the economy is a man-made crisis and it is because of the mismanagement of the economy? We don't subscribe to what Manmohan Singh has analyzed. We are not only walking the talk, we have made economy, which was 11th economy of the world, now it's 5th, and we are marching towards 3rd. Follow up to that. A lot of piecemeal steps have been taken by the government in the last few weeks, last 2-3 weeks we've seen after the economy has been slipping. There is a demand from industry for, stimulus, as well as, for some structural reforms in that way. Is there any effort to, because the economy GDP has gone down to 5%, which is a, extremely worrisome output? Let us understand that government is not looking at economy in piecemeal manner. We have a comprehensive view of economy. What we are doing is being a responsive government, addressing the issues, and you have seen this process in GST also. The GST Council met every month and took relevant decisions, and it is now fine-tuned. So that's the way how the people-friendly government works. And that is how we are working. So we are very sure that our economy will show the performance bright as is expected and as predicted. Sir, Last question. Tomorrow we are completing 1 month since we abrogated Article 370 in Jammu and Kashmir. Was there any formal or informal review by the cabinet in the situation in Jammu and Kashmir? Every day, Home Ministry and the Jammu Kashmir administration is giving latest details. You know that beyond very few police stations, now there is no even 144 section, only in 13 or 14 police station areas. And there is no bullet fired, no tear gas shared, and no casualty. That's very important. This is the 1 month story. अभी नहीं ऐसा है, कश्मीर की स्थिति के बारे में रोज जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय जो भी सवाल आपके होते हैं और जो नए निर्णय लेते हैं उसकी जानकारी देते हैं. अब बहुत ही कम पुलिस स्टेशन में 144 रहा है और पिछले 1 महीने में रोज जो स्थिति में सुधार हो रहा है उसका अपडेट आपको मिलता रहता है, मिलता रहेगा. Thank you very much. There was a media briefing on key decisions taken by the Union Cabinet today. It has been decided to recapitalize IDBI with a one-time infusion of funds to the tune of 9,000 crore rupees to be put on IDBI by the government as well as the LIC. This is going to expect both IDBI as well as LIC, and besides that, this is expected to be yet another decision that will take banking to a sound level in the country. Besides that, the CCEA approved a mechanism revision for ethanol, a price for supply to public sector oil marketing companies for ethanol procurement with effect from December 2019 for 1-year period. So those were some of the key decisions taken by the Cabinet in the CCEA. That's it in this edition of Midday Prime. Thanks for watching.